explanation about the genetics. What is genetics? What is inheritance? What is variation? What is the meaning of homozygous? What is the meaning of heterozygous? What is the meaning of allele? And what Mendel did and why Mendel selected the pea plant. So Gregor John Mendel is the father of genetics. He worked on the pea plant, that is a Pisum sativum, for 7 years, and he proposed the law of inheritance in the living organism. And first of all, he selected the 14 true breeding lines because he has taken 7 characters. You know that the characters are stem height, flower color, flower position, pod shape, pod color, seed shape, and seed color. And these 7 characters are having the 14 different traits. Okay, in the 14 different traits, so it means they have to first prepare the 14 different pure lines. Okay, and these 14 true lines means a breeder line or true line which has undergone continuous self pollination and they show stable trait inheritance and expression for several generation. जैसे अगर टॉल को टॉल से क्रॉस कराया सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो सारी जनरेशन में सिर्फ टॉल प्लांट्स ही आएंगे. नेवर, अगर कभी भी कई जनरेशन तक इन्होंने 13-14 जनरेशन तक, जब तक इन्हें स्टेबल जनरेशन नहीं मिली टॉल प्लांट्स की, तब तक वो क्रॉस कराते रहे. बिकॉज मेंडल डजंट नो अबाउट व्हाट इज होमोजाइगस और व्हाट इज हेटेरोजाइगस. उन्हें इतना पता था कि व्हाट इज ट्रू ब्रीडिंग लाइंस. उन्होंने होमोजाइगस लाइन बनाई. मेंडल डजंट नो अबाउट द जीन. मेंडल डजंट नो अबाउट द क्रोमोसोम. ही हैज गिवन देयर आर सम फैक्टर that is transferred from father to the offspring, that is inherited in terms of in terms of factor, in terms of gametes. तो मेंडल ने जो पहला लॉ दिया जिसे हमने कहा, देखो मेंडल ने क्या किया. सबसे पहले मेंडल ने क्रॉस किया. ये देख रहे हो आप, मेंडल ने क्रॉस किया. मेंडल ने क्रॉस करवाया, दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराई. दैट इज दे हैव क्रॉस्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन विल. इट डजंट मीन कि कोई सा भी पॉलन कोई सा भी स्टिग्मा में चला जाएगा. उन्हें पता था कि कौन सा उन्होंने फीमेल प्लांट लिया है, कौन सा मेल प्लांट लिया है. बिकॉज इफ यू डोंट नो द कैरेक्टर्स, हाउ कैन यू इंटरप्रेट द रिजल्ट. सो ही नोज, ही हैज डन द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड ही स्टडीड दैट. ही स्टडीड वन कैरेक्टर एट ए टाइम. इन केस ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ही क्रॉस्ड टॉल and draft plant, and they have studied the inheritance of one gene that control then that is related to tallness or darkness. Mendel hybridized plants with alternate forms of single trait, either monohybrid cross. इन्होंने the seed produced with this cross were grown to develop into the plants that is called F1 or first filial generation. Then he crossed the F1 plants, self cross, self pollinate. They produce the F2 progeny that is called filial 2 generation. In the later experiments also, the Mendel also crossed the pea plant with 2 contrasting characters like dihybrid cross also he has done. And Mendel also self-pollinated the F2 plants. So Mendel used emasculation and bagging technique procedure to avoid unwanted pollination in his experiment. That we have already discussed in the chapter number 2. That is artificial hybridization. Okay. तो मेंडल की क्या ऑब्जर्वेशन रही. तो मेंडल ने कैसे 3 लॉ दिए. मेंडल की ऑब्जर्वेशन ये थी कि F1 जनरेशन में मेंडल ने ये देखा कि ऑल पी प्लांट्स वर टॉल एंड नन वाज ड्राफ्ट. आप ये देख रहे हो, टॉल और ड्राफ्ट का क्रॉस हुआ. F1 में सारे के सारे क्या हैं, टॉल. F1 में सारे के सारे प्लांट्स क्या हुए, टॉल हुए. तो यहां से लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो कॉन्सेप्ट आया कि टॉल और ड्राफ्ट को अपने क्रॉस कराया और F1 में सारे के सारे टॉल हो गए. इसका मतलब क्या है कि टॉलनेस इज डोमिनेट ओवर द ड्राफ्ट. ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपने जैसे मान लो आपके घर है, आपके घर में मम्मी भी है पापा भी हैं. अब घर में अगर सिर्फ मम्मी की चलती हैं तो मम्मी डोमिनेंट है. अगर सिर्फ फादर की चलती हैं तो फादर डोमिनेंट है. अगर दोनों की चलती हैं तो को डोमिनेंस है. आगे भी हम पढ़ेंगे को डोमिनेंस. और अगर दोनों की मिक्स चलती है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस. बिकॉज मेंडल ने तो दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस. देयर आर एक्सेप्शंस लाइक लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस. अगर एक कैरेक्टर दूसरे पे पूरा कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, एंड देयर विल बी नो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर.
मेंडल के केस में यहाँ पे क्या हुआ, मिक्सिंग नहीं है, आइदर इट विल बी टॉल और ए ड्राफ्ट, देयर विल नॉट ऑफ इंटरमीडिएट हाइट, यहाँ पे मिक्सिंग नहीं है करेक्टर्स की, ठीक है। तो देयर इज, दैट मीन्स द टॉलनेस इज डोमिनेट ओवर द ड्राफ्ट, violet color is dominate over the white, inflated pod shape is dominate over constricted, green pod color is dominate over yellow color. So he also observed that one pair of trait and found that F1 always resemble one of its parents. जो F1 जनरेशन है वो हमेशा एक पेरेंट के साथ मिलेगी, क्योंकि यहाँ जैसे F1 में टॉल हुए तो किसी ना किसी एक पेरेंट पे करेक्टर गया है, एंड अदर पेरेंट वाज ऑलवेज मास्क, तो जो ड्राफ्टनेस वाला करेक्टर था वो मास्क कर लिया। इन F2 जनरेशन में क्या हुआ, जब F1 को क्रॉस कराया, इन F2 जनरेशन ही फाउंड दैट सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वर ड्राफ्ट। ओके, जैसे 3:1 का रेशियो आया इसमें, द करेक्टर विच वर नॉट सीन इन द F1 जनरेशन दे आर एक्सप्रेस इनटू F2। अब F1 में तो नहीं था, वो F1 में तो कोई भी ड्राफ्ट नहीं था, बट F2 में आ गया, तो यहां से आया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकेंड लॉ यहां से इसने इंटरप्रिटेशन की कि जो F1 के जो प्लांट्स हैं जो दिखने में टॉल हैं लेकिन वो क्या है, हेटेरोजाइगस, तो वहां पे गैमेट सेग्रीगेट हुए। जब इसमें से गैमेट्स बने F1 के प्लांट से, जब F2 बना, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे तो क्या होगा, दे सेग्रीगेट, कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में अलग अलग हुए, तो यहां से आया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इन्होंने बताया दीज कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स like tall and dwarf, they did not show any mixing in F1 or in F2 generation, and the similar results were formed in other traits when he studied. यहाँ पे एग्जांपल टॉल और ड्राफ्ट का दिया है, लेकिन अगर आप कोई भी 7 करेक्टर्स को लेकर स्टडी करोगे तो सेम रिजल्ट आया मेंडल के केस में, ठीक है। हमेशा जो F2 में जो रिजल्ट आया, दैट फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1, and Mendel found that identical result in the dihybrid cross as in monohybrid cross. dihybrid cross में भी ये रिजल्ट आया जो मोनोहाइब्रिड में थे, ठीक है। तो बात ये है कि, और जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को उसने डाईहाइब्रिड क्रॉस से इंटरप्रेट किया है। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम दो करेक्टर्स को एट ए टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो एक करेक्टर दूसरे करेक्टर की इनहेरिटेंस में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा। एक करेक्टर, जैसे वहां पे अगर आप टॉल और साथ में ले लो सीड कलर को, तो सीड कलर का और स्टेम हाइट का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मींस दैट वन कैरेक्टर विल नॉट इंटरफेयर विद द अदर कैरेक्टर इन ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। उसके बाद हमने ये पढ़ा था, दैट इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन, कि there are 50-50% chance that capital T is separate and small t will separate. So Mendel's ने जो inference निकाला, Mendel's के inference क्या थे, that Mendel observed that something was being passed down from parents to offspring through the gamete over successive generation, and he used the term factor. Nowadays we are using the term genes, but Mendel used the term factor. Now we are calling them genes. These genes are nothing but they are the unit of inheritance. They contain the information required to express a particular trait, and genes are always in a pair of contrasting traits. We call them alleles or allelomorph. They are slightly different form of a same gene. एक जीन की डिफरेंट फॉर्म्स को एलील कहते हैं। जैसे कैपिटल टी एक एलील है, स्मॉल टी क्या है, एलील है, और जीन किसके लिए, हाइट के लिए, ठीक है। तो जीनोटाइप क्या है, तो ही मेंडल प्रपोज दैट ए ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी is that where the allelic pair of genes are identical, just like capital T or small t, they are the true breeding varieties, like they are always they are homozygous. तो कैपिटल T एंड स्मॉल t रिप्रेजेंट जीनोटाइप, और फिनोटाइप क्या होता है, जो एक्सटर्नली आप देखते हो कि टॉल है कि ड्राफ है। तो मेंडल ने जो सेकंड लॉ इंटरप्रिटेशन किया, उसने बताया दैट द टॉल, होमोजाइगस टॉल और ड्राफ will always homozygous. They pre-plant produce gametes. The alleles of the parental pair segregate from each other, and only one allele is transmitted to a gamete. And the gametes of the tall plant, capital T have the allele capital T, and draft small t have the allele small t.
So the segregation of allele is a random process. There is only 50% chance that gamete containing either allele, as verified by the result of the crossing after fertilization of plant, capital T, and small t, the hybrid is formed, that is called capital T, small t. That is, we are discussing in the F1 generation. Hello? Is there any question? So, हमने कल बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ रहे थे। बैक क्रॉस क्या चीज है? बैक क्रॉस अगर F1 का हम किसी भी पेरेंट से अगर क्रॉस कराएंगे तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। लेकिन अगर F1 को अगर हम रिसेसिव से कराएं क्रॉस, F1 के डोमिनेंट फिनोटाइप को हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। Why we do the test cross? Because a test cross is conducted between unknown dominant genotype and a recessive parent. It is just to know. This is a method to determine the genotype of an organism. Because you don't know that, suppose the F1 plant, this is a hybrid. You know its phenotype, but you don't know the genotype. It can be capital T, it can be capital T, small t. So just to know whether it is a homozygous or heterozygous, we will do the test cross. So here we are doing the test cross of that particular plant which is having the violet color flower. So we don't know that violet phenotype is due to homozygous condition or heterozygous condition. So for that we do the test cross. If the test cross, if that is okay, okay. So I'll discuss in the last 10 minutes about this. If you have so law of dominance. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? देखिए, मेंडल ने कहा एलील्स के बारे में बात नहीं की, मेंडल ने कहा फैक्टर। तो कैपिटल टी भी एक फैक्टर है, स्मॉल टी भी एक फैक्टर है। हमारे अंदर कितने होते हैं? वी आर डिप्लॉयड। देखो, जो पी प्लांट है वो भी डिप्लॉयड है। अब डिप्लॉयड के अंदर दो एलील्स है, तो करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट, इट इज कॉल्ड फैक्टर, एंड फैक्टर्स आर अकर्स इन पेयर। जैसे क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं, लेकिन मेंडल्स को क्रोमोसोम के बारे में नहीं मालूम था, ना जीन्स के मालूम था, उसने तो सिर्फ फैक्टर्स की बात की। तो इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट द अदर। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी, इट इज डोमिनेट द स्मॉल टी। जो डोमिनेट है उसे हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो करेक्टर जो रिसेसिव होता है उसे हम स्मॉल लेटर से एक्सप्लेन करते हैं। तो कैपिटल टी में भी डोमिनेट करेक्टर आएगा और कैपिटल टी स्मॉल टी में भी डोमिनेंट फैक्टर आएगा, बट वो क्या होगा? हेट्रोजाइगस है। और स्मॉल टी रिसेसिव करेक्टर विल अपीयर ओनली इन द होमोजाइगस कंडीशन। तो यहां हमने बात की कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब कि एक एलील दूसरे एलील को कंप्लीटली मास्क कर रहा है। एक कैपिटल टी स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को पूरी तरह मास्क कर रहा है। देयर विल बी नो इंटरमीडिएट हाइट। मेंडल के केस में ब्लेंडिंग नहीं हुई, देयर विल बी नो ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर। और दूसरा लॉ क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ करेक्टर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये कैसे आया? F1 में जब हेटेरोजाइगस बन गए, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गए, तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर्स ऑफ ए करेक्टर पेयर प्रेजेंट इन द पेरेंट दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट ए गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। देखो, जो पेरेंट है वो तो डिप्लॉयड है, लेकिन गैमेट क्या है? हैप्लॉयड। तो अगर पेरेंट कैपिटल टी है तो उसे गैमेट क्या मिलेंगे? कैपिटल टी। अगर पेरेंट स्मॉल टी है तो गैमेट क्या मिलेंगे? स्मॉल टी। लेकिन अगर पेरेंट कैपिटल टी स्मॉल टी है तो गैमेट क्या मिलेंगे? आइदर कैपिटल टी स्मॉल टी, जो मेंडल के केस में होता है F1 में। तो होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस सिमिलर गैमेट और हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट हैविंग वन एलील विद इक्वल प्रोपोर्शन। तो मेंडल ने लॉ ऑफ जो सेग्रीगेशन जो दिया है, जब F1 में उसने क्रॉस कराया हेटेरोजाइगस को, कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराया, और उसे F2 में कैपिटल टी भी मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, और स्मॉल टी मिला। तो जो हिडन करेक्टर था, जो ड्राफ्ट करेक्टर था, जो F1 में हिडन जो छुप गया था, वो F2 में एक्सप्रेस हो गया। तो वो कहां से आया?
इसका मतलब वो F1 में था, F1 में वो पेरेंट से अलग हुआ, और जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आया तो एक्सप्रेस हुआ। तो यहां से आया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद आती है बात, अब तक हमने बात की मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद में, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताए उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस से, लेकिन थर्ड लॉ जो दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये किसके ऊपर बेस है? दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे आप अकेले बैठे हुए कमरे में, अब आप अपने दोस्त से नकल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जब हो ही अकेले तो कैसे पता लगेगा नकल कर रहे हो नहीं कर रहे हो? ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दे ही नहीं सकते। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विल बी ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज मोर देन वन कैरेक्टर यू आर टेकिंग एट ए टाइम। अगर एक क्लास में एक से ज्यादा बच्चे बैठे तभी तो हम सोच सकते हैं कि आपस में क्या हो रहा है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से यू कैन नॉट इंटरप्रेट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो रिजल्ट आया दैट कम्स फ्रॉम द आइदर डाई हाइब्रिड क्रॉस और टाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने यहाँ डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में जो डिस्कस किया है, it states that when two pairs of contrasting traits are combined in a hybrid, the segregation of one pair of character is independent of the other pair of character. अगर हाइट को और सीड कलर को लेके चलूं, तो हाइट का जो एलील है वो अपने ही तरफ से इनहेरिटेड हो रहा है, और जो कलर का जो एलील है वो अपनी तरफ से इनहेरिटेड हो रहा है। देयर इज नो लिंकेज, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे कॉल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द जीन्स गेट रैंडमली रीअरेंज्ड इन द ऑफस्प्रिंग, producing both paternal and new combination of characters. Therefore, the inheritance of one character does not affect the inheritance of another character, and both the characters assort independently. That is explained by this. He has crossed like a round shape with yellow colored seeds, RRYY, capital RRYY, with the wrinkled and green. In the F1 generation, these are the gametes they will form: capital R, capital Y, and small r, small y. Here the gametes, because it's a dihybrid cross, and in F1 generation, all are round yellow, but they are heterozygous. ठीक है, अब इनका F1 वालों का इसने सेल्फिंग कराई, गैमेट्स कितने बनेंगे? चार तरह के डिफरेंट गैमेट्स बनेंगे। F2 में जब F1 से F2 बन रहे हैं तो चार डिफरेंट टाइप के गैमेट बने, और गैमेट बने तो देखो ये आया, डाई हाइब्रिड क्रॉस करोगे तो ये रिजल्ट आया। पुनेट स्क्वायर से हमने देखा, तो अगर आप देखोगे तो वहां F2 में जो फिनोटिपिक रेशियो था वो 3:1 था, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 था, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 था। यहाँ पे भी आप देखोगे देयर इज ए रेशियो 12:4। अगर आप काउंट करो येलो कितने हैं और ग्रीन कितने हैं, तो देर आर 12 येलो, टोटल कितने कॉम्बिनेशन है? 16 कॉम्बिनेशन में देखो मोनो हाइब्रिड में से कितने? 4 कॉम्बिनेशन बने थे, और डाई हाइब्रिड में कितने बनेंगे? 16, और ट्राई हाइब्रिड करोगे तो 64 बनेंगे। ठीक है, और उसके बाद करोगे तो 128 बनेंगे। तो आउट ऑफ दिस 16, the 12 are yellow, 4 are green, and the ratio is same, 3:1, as interpreted in the monohybrid cross in F2 generation. तो फिनोटाइपिक रेशियो वही है। अगर आप राउंड देखोगे तो यहाँ राउंड कितने हैं? राउंड यहाँ पे 12 हैं, और रिंकल्ड कितने हैं? 4 हैं। तो रेशियो कितना आया? 3:1। ठीक है, तो दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लिंकेज इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आगे लिंकेज का कॉन्सेप्ट आएगा जो मॉर्गन ने दिया, टीएच मॉर्गन ने काम किया कि देखा जो लॉ ऑफ मेंडल ने जो कहा है वो किसी और भी चीजों पे एप्लीकेबल है नहीं किए। जब उसने ड्रोसोफिला पे काम किया तो उसने देखा कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो काम ही नहीं करता, वहां पे लिंकेज है। तो लिंकेज इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या इंटरप्रिटेशन है ये देखो। On observing F2, Mendel found that the yellow and green segregate in the 3:1 ratio in F2, and round and wrinkled seed shape also segregate in the 3:1 ratio. And the phenotypic ratio is 9:3:3:1, because यहाँ पे कितनी बने? टोटल 16 कॉम्बिनेशन है, बट ओवरऑल जो रिजल्ट है अगर अलग अलग कैरेक्टर्स का देखो तो 3:1 है, बट देर आर टोटल 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन. So this ratio can be derived as a combination series of 3 yellow, 1 green, or 3 round, 1 wrinkled.
Okay, so dihybrid phenotypic ratio is 9:3:3:1 because there are total 16 combination. And if you go for genotypic ratio, that you can interpret like yourself. It is not given in the NCERT. The genotypic ratio is very typical. If you calculate it, like you write the genotype, different genotypes. The how many genotypes is possible? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 9. There are 9 type of genotype is possible in this case. But phenotype, there are only 4 type of phenotype. And genotype is there 9 type. The ratio is 1:2:1:2:4:2:1:2:1. It is on the sequence of the genotype, what in which you want to write the genotype. Because if you just write the 1:2:1, it doesn't mean if you don't write the what type of genotype you are expecting. So whenever you write any genotype like 1:2:1, then write capital T ratio capital T small t, then ratio small t. So whenever you write the genotype, you explain the whenever you writing the ratio, you just write the genotype. Only then you will get the answer. Just like that, if I say what is your weight, if you say 2, then what is the meaning of 2? Either it's in kg or gram. So the third law, that is law of independent assortment, that is given by the Mendel. इसने क्या कहा इसमें? It is based on the result of dihybrid cross. Monohybrid cross के बेस पे तो आप बता ही नहीं सकते कि law of independent assortment. It states that when more than one pair of characters are involved in a cross, the factor pair independently segregate from the other pair of character. That is the called law of independent assortment. ठीक है? तो what is the meaning of concept of dominance? अगर आप ये एग्जाम्पल देखो, every gene contains information to express a particular trait. हमारे जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सबको सब, क्योंकि फिनोटाइप डिपेंड करता है जीनोटाइप पे, जीनोटाइप फिनोटाइप पे नहीं करता. हमारा फिनोटाइप किस पे डिपेंड करता है? जीनोटाइप पे. जीनोटाइप कंट्रोल करता है फिनोटाइप को, फिनोटाइप जीनोटाइप को कंट्रोल नहीं करता. In heterozygous, there are 2 type of allele. One is unmodified, another normal and functioning allele, और second is modified allele. जो modified allele है, it is generally recessive, और unmodified है, it is generally dominant and represent original phenotype. अगर दोनों ही unmodified हैं, तो homozygous होगा, functional होगी. अगर एक भी unmodified है, तो heterozygous है, but gene will be functional. अगर दोनों ही modified हो गए, then homozygous होगा, और वो it will be expressed in the only in the homozygous condition. तो allele of a brown eye color is unmodified allele, allele of blue eye color is a modified allele. तो यहाँ पे क्या है कि अगर एक भी allele अगर आपका मतलब कि functional है, तो it will express. ठीक है? So I think now only 10 minutes are left. Sir,